Hello, welcome to Sumo Biology online classes. Today we are going to discuss some important points from the chapter cell cycle and cell division. Okay, so let's start. All cell reproduce by dividing into two. Cell reproduce by dividing into two, which with each parental cell giving rise to two daughter cell each time they divide. Okay, during the division of cell DNA replication, that is DNA duplication, and cell growth also take place. These are the important points from the chapter cell cycle and cell division. The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituent of the cell, and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle. This sequence of event in which a cell duplicates its genome, a complete set of chromosomes, that is called genome, synthesize other constituent of the cell such as endoplasmic reticulum, Golgi body, etc., and eventually divides into two daughter cell is termed cell cycle. Human cell divide once in approximately 24 hours. Human cell to divide, it takes near about 24 hours, approximately 24 hours. Duration of such cell cycle can vary from organism to organism and from cell to cell, whether it is a prokaryotic cell or eukaryotic cell. Yeast, say for example, yeast can progress through the cell cycle in only 90 minutes. Yeast cell completed its cell cycle in 90 minutes. The cell cycle is divided into two basic phases, interphase and M phase. The M phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occurs. M phase is the actual phase where the actual cell division or mitosis occurs, and the interphase represents the phase between the two successive M phase. So cell cycle can be divided into two phase, interphase and M phase. This is the interphase and this is the M phase. Interphase further divided into three, G1, S and G2. Okay, so interphase and M phase. The M phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occur, and the interphase represents the phase between the two successive M phase. The M phase starts with the nuclear division. Nuclear division called as, the term used for nuclear division, karyokinesis. Karyon means nucleus. The usually ends with division of cytoplasm. So M phase starts with karyokinesis and ends with division of cytoplasm, that is cytokinesis. The interphase, though called the resting phase, is the time during which the cell is preparing for division. So interphase earlier is thought to be resting phase, but nowadays we know that during the interphase, cell is preparing itself for the upcoming cell division. Cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA duplication in an orderly manner. The interphase is further divided into three phases, G1, S and G2. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grow. During G1, cell is metabolically active and continuously grow. During S phase marks the period during which the DNA duplication takes place or DNA replication takes place. During this time, the amount of DNA per cell doubles. The amount of DNA denotes by the symbol C. Amount of DNA present in a cell, we denote that by alphabet C. C value. C value of a cell tells us about the amount of DNA present in the nucleus. C value of a cell tells us about the amount of DNA in picogram present in the nucleus. In case of haploid cell, the content of DNA present in a cell represents the 1C value. In diploid cell, that is N is equal to 2. In haploid cell, in case of haploid cell is that which contains one genome, single genome in its nucleus. Genome is a complete set of chromosomes. Where each and every chromosome represents itself singly. So genome, if a single genome is present in a cell, it is said to be haploid, and that content of DNA present at that time in the nucleus is called as 1C value. And if cell is a diploid, that is, it contains two genome in its nucleus, then the cell is said to be diploid, and the amount of that DNA
tells us about the 2C value. So if the initial amount of DNA is denotes as 2C, then it increases to 4C by the end of S phase, because the DNA content get double. The amount of DNA that was initially 2C, now it becomes 4C after the completion of the S phase. However, the number of chromosome will not get changed. Number of chromosome will remain the same. However, there is no increase in the chromosome number. In animal cell during the S phase, DNA duplication take place. Along with DNA duplication, centriole duplicates also occur in the cytoplasm during the S phase, whereas in case of plant cell, centriole is not present. During the G2 phase, proteins are synthesized in preparation of mitosis, while cell growth continues. Some cells in the adult animal do not appear to exhibit division, and many other cells divide only occasionally. These cells that do not divide further, they exit from G1 phase to enter into an inactive stage called quiescent stage or G0 stage of the cell cycle. Cells in this stage remain metabolically active in G0. When cell is present in G0 phase, the cell is metabolically active, live, but no longer proliferate, it no longer going to divide. So this question, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में आ चुका है Q0 फेज के लिए, क्विसेंट स्टेज के लिए. इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल. However, there are few exceptions. Say for example, male honeybee drones. The body of male honeybee is haploid. As you know, female honeybee contains 32 number of chromosomes diploid in nature, whereas male honeybee develops from unfertilized egg. And male honeybee, in case of male honeybee, somatic cells has 16 number of chromosomes. So male honeybee body shows growth by means of mitotic division in its cells, that are the haploid cells. So this is the exception of the statement that mitotic cell division is only seen in diploid somatic cells in animals. Okay. Against this, the plant can show mitotic division in both haploid and diploid cell. M phase is the most dramatic phase of the cell cycle. M phase is the most dramatic phase of cell cycle, involving a major reorganization of virtually all components of cell. For convenience, mitosis has divided into 4 stages of cell division, nuclear division. For convenience, mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division, that is karyokinesis, divided into prophase, metaphase, anaphase and telophase. Prophase follows the S phase and G2 phase of interphase. Prophase follows the S phase and G2 phases of interphase. Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. This line is important. Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. The centrosome begins to move towards opposite pole, and centrosome begins to move towards the opposite pole. The completion of prophase marked by the following characteristic events. Chromosomal material condenses to form compact mitotic chromosome. Chromosome composed of 2 chromatid, because this is the original DNA molecule. It forms its replica, and this replicated DNA molecule is remain attached to the centromere. So at this point of time, the chromosome appears like this. This is the one chromatid. Half of the duplicated chromosome is called as chromatid. This is the one chromatid and this is the another chromatid. These are sister chromatid. So at this stage, chromosome consists of 2 chromatid attached together at the centromere. Centromere is the primary construction in chromosome. Centrosome, which had undergone duplication during interphase, begins to move towards opposite pole. Centrosome in case of animal cell, centrosome divides, centrosome duplicates itself, and centrosome begins to move towards opposite pole. Each centrosome radiates out microtubule called ester. हर सेंट्रोसोम से, दोनों सेंट्रोसोम से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर की तरफ निकले दिखाई देंगे, उसी को हम लोग एस्टर बोलते हैं. द 2 एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर. और ये जो 2 एस्टर हैं अलॉन्ग विथ ये हमारे
तुर्क तंतु के साथ ये बना रहे माइटोटिक अपरेटस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स। हर सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं। 2 सेंट्रोसोम है। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर। द एस्टर together with the spindle fiber form mitotic apparatus. Cells at the end of prophase do not show Golgi body, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope. At the end of prophase, cell do not show Golgi body, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope. These all get disintegrated. The complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis. Hence, the chromosomes are spread throughout the cytoplasm of the cell. So, nuclear membrane get disrupted, so chromosome get dispersed in the cytoplasm. This then is the stage at which morphology of the chromosome is mostly studied. So metaphase is the phase, metaphase is the stage at which, if you want to study the morphology of chromosome, is the best phase to study. Metaphase. A small disc-shaped structure at the surface of chromosome. A small disc-shaped structure at the surface of centrosome. A small disc-shaped structure at the surface of centrosome are called kinetochore. These structures serve at the site of attachment of spindle fiber. These structures serve the site of attachment of spindle fiber to the chromosome. The metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator. Metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator. So, all chromosomes get aligned at equator, and this plane is called as metaphase plate. The key feature of metaphase are spindle fiber attached to kinetochore of chromosome. Chromosome are moved to the spindle equator. Chromosome spindle equator पे आ गए हैं and get aligned along the metaphase plate through spindle fiber attached to both pole. और ये अच्छी तरह से अरेंज हो गए हैं metaphase plate पे. At the onset of anaphase, एनाफेज की शुरुआत कैसे हो रही है? ईच क्रोमोजोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट. ये क्रोमोजोम जो डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम अभी मेटाफेज प्लेट पे अरेंज है, ये बीच से टूटेगा, स्प्लिट हो जाएगा. ईच क्रोमोजोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड 2 डॉटर क्रोमेटिड्स. और ये क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो गए. ये क्रोमेटिड जो सिस्टर क्रोमेटिड थे, ये फ्यूचर की डॉटर सेल के अब इंडिविजुअल क्रोमोजोम होंगे. जब ये अलग अलग हो गए तो ये फ्यूचर में जो 2 सेल्स बनने जा रही हैं सेल डिवीजन से, उनके ये फ्यूचर के क्रोमोजोम है. नाउ रेफर्ड एज, और इनको हम कह सकते हैं नाउ रेफर्ड टू एज डॉटर क्रोमोजोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई. बिगिन देयर माइग्रेशन टूवर्ड्स द अपोजिट पोल. और दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव होना चालू हो जाएंगे. एनाफेज प्लेट स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय फॉलोइंग की इवेंट: सेंट्रोसोम्स स्प्लिट एंड क्रोमेटिन सेपरेट. सेंट्रोसोम स्प्लिट हो जाएगा, क्रोमेटिन सेपरेट हो जाएंगे, क्रोमेटिन मूव टू द अपोजिट पोल की तरफ चले गए. टीलोफेज एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस. एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस. टीलोफेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस. टीलोफेज, द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स decondense and lose their individuality. This is the stage which show the following key events: chromosome cluster at opposite pole and their identity is lost. Nuclear envelope develops around the chromosome clusters and each pole forming 2 daughter nuclei. तो ये अपोजिट पोल पे पहुंच के क्रोमोसोम फिर से डिकंडेंस हो गए. इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो गई, न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर हो गया. ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए. और जो भी हमारे सेल ऑर्गेनेल थे, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो डिस्टर्ब हो गए थे, वो फिर से बन जाएंगे, फिर से रिफॉर्म हो जाएंगे. एट द
एंड सेल itself इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। अब आखिरी में आके सेल 2 डॉटर सेल में कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, साइटोकाइनेसिस होगा और सेल पेरेंटल सेल 2 डॉटर सेल में बढ़ जाएगी बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, एट द एंड ऑफ विच ईच सेल डिवीजन gets completed. In an animal cell, this is achieved by appearance of a furrow in plasma membrane. एक फॉरो सा बनेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो डीपन होता चला जाएगा और अल्टीमेटली पेरेंटल सेल 2 डॉटर सेल में बढ़ जाएगी। एंड इन केस ऑफ प्लांट सेल्स आर इनक्लोज इन रिलेटिवली इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल। प्लांट सेल के चारों तरफ एज यू नो वेरी वेल रिजिड सेल वॉल होती है, देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर, so wall formation starts in the center and grows outward to meet the existing lateral wall, and ultimately cell division gets completed and parental cell get divided into 2. This is all about the mitosis. माइटोसिस में आपने याद रखना कि मेटाफेज स्टेज वो स्टेज है जिसमें ये सबसे अच्छी तरह से हम क्रोमोसोम दे सकते हैं। प्रोफेज में हमारा न्यूक्लियर एनवेलप डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे गोल्जी बॉडी ये सब गायब, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिस्टर्ब होने से ये कंडेंस जो क्रोमोसोम है साइटोप्लाज्म में बिखर जाएंगे। मेटाफेज में ये अरेंज हो जाएंगे मेटाफेज प्लेट पे और माइटोटिक स्पिंडल बन जाएगा। एनाफेज में ये स्प्लिट होगा, अपोजिट पोल की तरफ जाने लगेगा और टीलोफेज में अपोजिट पोल पे पहुंच के डिकंडेंस हो जाएगा, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। ये बातें हैं जो आपने याद में रखनी है। एस फेज, G1 फेज और G2 फेज को ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है। एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन होता है, एस फेज में सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। ये बातें याद में रखने के बाद हम लोग मियोसिस पे आते हैं। ये हमारा माइटोटिक सेल डिवीजन की बात थी। माइटोटिक सेल डिवीजन इक्वेशनल सेल डिवीजन कहलाता है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर पेरेंटल सेल और डॉटर सेल में सेम रहते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ मियोसिस इट इज़ कॉल्ड एज रिडक्शनल सेल डिवीजन बिकॉज द chromosome number get reduced in the daughter cell. The specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cell. तो ये मियोसिस जब भी होगा हमेशा डिप्लॉयड सेल में होगा, मियोसिस हैप्लॉयड सेल में कभी भी नहीं होगा। मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल में होगा। एज यू नो वेरी वेल व्हाट इज डिप्लॉयड सेल, जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरू में एक्सप्लेन किया, डिप्लॉयड सेल वो है जिसमें न्यूक्लियस में 2 जीनोम है, 2 सेट हैं क्रोमोसोम के, तो एट द एंड एक सेट रह जाएगा। तो इनिशियली अगर क्रोमोसोम नंबर 46 है 23 हो जाएगा, 16 है 8 हो जाएगा, गेट रिड्यूस बाय हाफ। अगर 32 है 16 हो जाएगा, 16 है 8 हो जाएगा। ये है हमारा मियोसिस का फंडा। मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वेयर एज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉयड फेज। तो मियोसिस इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि क्रोमोसोम का नंबर डिफरेंट जनरेशन में कांस्टेंट बना रहे, क्योंकि गैमीट अगर फ्यूज़ हुए बगैर मियोसिस के तो हर जनरेशन में नंबर डबल होता चला जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे। द की फीचर ऑफ मियोसिस आर एज फॉलो। मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। मियोसिस में 2 क्रम से इवेंट हो रहे हैं, न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन के, जिसको हम लोग मियोसिस 1 और मियोसिस 2 बोलते हैं। बट सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन, लेकिन डीएनए डुप्लीकेशन एक बार होगा। तो 2 सेल डिवीजन होंगे जिनको हम लोग मियोसिस 1 मियोसिस 2 बोलेंगे, लेकिन डीएनए डुप्लीकेशन केवल एक बार होगा मियोसिस 1 से पहले। मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये जो हमारा पेरेंटल क्रोमोसोम था, डीएनए था, उसने अपनी रेप्लिका बना ली और ये रेप्लिकेटेड जो इसकी कार्बन कॉपी है वो सेंट्रोमियर से अटैच है। ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। तो ये एक क्रोमैटिड और ये उसका सिस्टर क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड हो गया। मियोसिस इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम replicated to produce identical sister chromatid at S phase. Meiosis involve pairing of homologous chromosome. Meiosis में पेयरिंग होगी homologous chromosome की, जो केवल आपको मियोसिस में देखने को मिलेगी। homologous chromosome की पेयरिंग माइटोसिस में नहीं होती। तो पेयरिंग के लिए जिसके लिए हम लोग साइनेप्सिस टर्म यूज़ करते हैं और पेयरिंग होता है तो फिर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज भी होगा, जिसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मियोसिस का, आपको मियोसिस में ही मिलेगा देखने को, माइटोसिस में देखने को नहीं मिलेगा। तो होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम की पेयरिंग दैट इज साइनेप्सिस एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। 4 haploid cells are formed at the end. 1 parental cell gave rise to 4 haploid cell. 1 diploid cell, parental diploid cell. This is the diploid cell. It undergoes meiosis first, and at the end of meiosis first, this parental cell gave rise to 2 haploid cells.
and these cells act as parental cell for the upcoming next phase of cell division, that is meiosis 2. So meiosis get completed in 2 phases of cell division. At the end, one parental cell, diploid cell, give rise to 4 haploid cells. Meiotic events can be grouped under the following phases: meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis first is further divided into prophase first, metaphase first, anaphase first, telophase first. After that, meiosis 2. Meiosis 2 is divided into prophase second, metaphase second, anaphase second and telophase second. देखिए, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा meiosis फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट से आएगा, ये वाला आपका पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रोफेज फर्स्ट ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर, मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के प्रोफेज की अपेक्षाकृत यहाँ पे जो प्रोफेज फर्स्ट मिल रहा, मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट मिल रहा है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, लॉन्गर है। इट हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। Leptotin, zygotin, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस. During leptotin stage, the chromosome become gradually visible under the light microscope. Compaction of chromosome continues. तो ये याद रखिएगा कि किस किस फेज़ में क्या क्या हो रहा है, हमेशा क्वेश्चन यहीं से आता। तो लेप्टोटीन में क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन हो रहा, ग्रेजुअली विजिबल, आपको लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे दिखने लगेंगे, क्योंकि पहले तो ये क्रोमेटिन थ्रेड है और ये इनका कॉम्पैक्शन होने लगेगा। कॉम्पैक्शन कंटिन्यूस थ्रू आउट द लेप्टोटीन. ड्यूरिंग जाइगोटीन क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करेंगे। ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है भाई, आप जानते हैं हम ह्यूमन बीइंग में 46 नंबर है क्रोमोसोम का, जो आपको सोमेटिक सेल्स में और मदर जनरेटिव सेल में मिल रहा, डिप्लॉयड। तो 23 एक जीनोम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 23 क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड जीनोम, वन जीनोम, एन वैल्यू इज इक्वल टू 1। और इस जीनोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, 23। देखिए एन वैल्यू 1 का मतलब होता है 1 कंप्लीट सेट। अब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफर हो सकते हैं, होते हैं अलग अलग स्पीसीज़ में। जैसे ह्यूमन बींग के केस में 23 है, एप्स के केस में ये 24 है, पाइथम सेटाइमम के केस में 7 है, ड्रोसोफिला के केस में ये 4 है, अनियन के केस में ये 8 है। तो कहने को n इज इक्वल टू 1 हैप्लॉइड सेल है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग है। यहाँ पे 23 है ह्यूमन बींग में, 46 आपके n इज इक्वल टू 2, 2 जीनोम में 46 हो जाएंगे। एक जीनोम हमें हमारे मदर से, एक जीनोम हमें हमारे फादर से। सो 1 से 23 तक का एक सेट हमारे मदर का, 1 से 23 तक का एक सेट हमारे फादर का। 8वें नंबर का क्रोमोसोम, 8 नंबर क्रोमोसोम, उसकी 2 कॉपी हैं हमारे पास, एक जो हमें हमारे फादर से मिली, एक जो हमें मदर से मिली। ये जो एक जैसे क्रोमोसोम है, सेम क्रोमोसोम है, यही एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो पेयरिंग हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम में होगी। होमोलोगस क्रोमोसोम ने पेयरिंग करी, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड जो है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो क्रोमेटिड क्या है, हाफ ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रोमेटिड। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का हाफ पार्ट क्रोमेटिड कहलाता है। अब ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है होमोलोगस क्रोमोसोम के, और इन्हीं के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर के एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो इसने कुछ टुकड़ा टूटा इधर आ गया और इसका कुछ टुकड़ा टूटा इधर आ गया, आदान प्रदान हो गया, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया, जिसकी वजह से वेरिएशन आते हैं, रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, वेरिएशन आएंगे। और आप जानते हैं म्यूटेशन भी एक कारण है वेरिएशन का, इसी तरह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कारण है वेरिएशन का। तो इट हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। आपको याद रखना है कि लेप्टोटीन में क्या हुआ, कॉम्पैक्शन हुआ है और ये विजिबल हो गए। ड्यूरिंग जाइगोटीन में साइनेप्सिस हुआ, दैट इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। साइनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्स क्रोमोसोम एंड कॉल्ड बाईवैलेंट और टेट्राड। अब ये जो साइनेप्स क्रोमोसोम है जिनमें पेयरिंग हो गई, इनको हम बाईवैलेंट बोल सकते हैं, 2 क्रोमोसोम, या टेट्राड, क्योंकि 4 इसमें क्रोमेटिड है तो टेट्राड भी बोल सकते हैं। इनको हम बाईवैलेंट या टेट्राड बोलते हैं। द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ पैकेटीन। तो लेप्टोटीन और जाइगोटीन शॉर्ट लिव्ड है एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट स्टेज पैकेटीन। ड्यूरिंग पैकेटीन 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाईवैलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एट टेट्राड। तो टेट्राड और मार्केबली आपको दिखने लगा, क्लियरली विजिबल हो गया। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। पैकेटीन स्टेज वो है
जब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाएगा, जहाँ पे ये जुड़े हैं वहाँ पे एक नोड्यूल बन जाएगा और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, that is called recombination. This stage is characterized by appearance of recombination nodule. Crossing over is also enzyme mediated process, and the enzyme involved is called recombinase, the enzyme that takes part in the process of recombination. Recombinase. The beginning of diplotin is recognized by dissolution of synaptonymal complex and tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the साइड्स ऑफ क्रॉस ओवर। तो ये बाईवैलेंट क्रोमोसोम जिनके बीच अब क्रॉसिंग ओवर हो चुकी, ये दोनों एक दूसरे से फाइनली गेट अपार्ट, एक दूसरे से दूर होने लगेंगे, बस केवल कहाँ पे जुड़े रह जाएंगे, जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे। द एग शेप, अब जब ये एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, ये आपको एग शेप दिखाई देगा, क्योंकि ये सीन है, केवल जुड़े कहाँ पे हैं, केवल वहाँ पे जुड़े हैं जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना था या जहाँ पे इन्होंने आदान प्रदान चीज़ों का किया, इसीलिए इनको हम लोग काइस्मेटा बोलते हैं, एग शेप दिखाई देंगे और काइस्मेटा। इन ओ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर। लाइन इंपॉर्टेंट है, इन ओ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर। तो जॉइंट क्रोमोसोम जब आप पढ़ेंगे, अब आता नहीं है तो इसीलिए लैम्बर्ट क्रोमोसोम और डिप्लोटिन बाइवेलेंट क्रोमोसोम जॉइंट क्रोमोसोम होते हैं। तो कुछ आपको देखेंगे कि कुछ ऐसे वो साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, ये डिप्लोटिन स्टेजेस वाले क्रोमोसोम कई दिनों तक, महीनों तक इस स्टेज में रहते हैं। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेसिस डायकाइनेसिस, दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा। एट द एंड द नोड्यूल्स डिसअपियर, ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स डिसअपियर हो गए, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन। तो प्रोफेज के अंत में आके जो माइटोसिस में हुआ था वही यहाँ होगा कि न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो गया और वो जो क्रोमोसोम थे साइक्लोन में बिखर गए थे। मेटाफेज फर्स्ट, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटर प्लेट, वहाँ पे भी यही हुआ था कि क्रोमोसोम अलाइंड हो गए थे इक्वेटर प्लेट पे, यहाँ पे भी हो गया। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, वहाँ पे भी एस्टर फॉर्मेशन हुआ था, एस्टर फॉर्मेशन के साथ आपका स्पिंडल अपरेटस बना था, यहाँ पे भी अब यही हो गया। एनाफेज फर्स्ट, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। माइटोसिस में एनाफेज में क्या हुआ था, माइटोसिस में एनाफेज 1 एनाफेज 2 नहीं थी, माइटोसिस के एनाफेज में ये जो हमारा क्रोमोसोम था स्प्लिट कर गया था। यहाँ पे क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं हुआ, यहाँ पे जो अरेंजमेंट हुआ है वो ऐसे हुआ। तो मानिए ये हैं क्रोमोसोम, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हुए थे, ठीक है जी। ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम अपने इस पोल की तरफ चला जाएगा, ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम अपने इस पोल की तरफ चला जाएगा। तो पूरा क्रोमोसोम अपने डुप्लीकेटेड अपने सिस्टर क्रोमेटिड के साथ इधर को मूव हो गया, ये इधर को मूव, इसीलिए नंबर आधा हो जाता। तो ये 46 थे, मानिए 23 पेयर, जब 23 इधर आ गए, 23 इधर और 23 इधर आ गए और बाद में ये 2 सेल में बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट रिड्यूस टू हाफ। यही हुआ है क्योंकि एनाफेज फर्स्ट में द कंप्लीट क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स इट्स पोल। The homologous chromosome separate while sister chromatid remain associated with their cytomere. Telomere, telophase, the nuclear membrane and nucleolus reappear. सेम वही चीज़ें जो मेटाफेज में हुई थी, एनाफेज में हुई थी, टेलोफेज में हुई थी, सेम वही चीज़ें यहाँ हुई हैं। बस फ़र्क ये हुआ है कि क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं हुआ है, पूरे का पूरा क्रोमोसोम एज इट इज़ चला गया है। द स्टेज बिटवीन द 2 माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में जो स्टेज है इंटरकाइनेसिस है, जो शॉर्ट लिव्ड है। मियोसिस 2 इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, और ज़्यादातर केस में तुरंत ही मियोसिस चालू हो जाती है, अगर थोड़ा सा गैप हुआ भी तो बहुत थोड़ा होगा, इंटरकाइनेसिस कहलाएगा। प्रोफेज सेकंड, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर डिसअपियर हो गई। बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2 क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, क्रोमोसोम जो थोड़े बहुत डिसमेंटल हो गए थे वो फिर से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे और मेटाफेज में भैया फिर से वो आ गए साइटोप्लाज्म में, और मेटा फिर से इक्वेटर प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे। लेकिन अब क्रोमोसोम जो अरेंज है उसका होमोलोगस क्रोमोसोम तो जा चुका है, ठीक है जी। अब ये क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे जब अरेंज हुए हैं तो एनाफेज 2 में ये स्प्लिट करेगा 20 से। तो मेटाफेज 2 में ये क्रोमोसोम अलाइन होगा इक्वेटर प्लेट पे, माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर, और ये हमारा स्पिंडल अपरेटस बन गया। एनाफेज 2 में जो हमारे माइटोसिस के एनाफेज में हुआ था स्प्लिट हो गया था, स्प्लिट हो जाएगा आधा इधर आधा इधर। तो एनाफेज 2 इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम allowing them to move towards the opposite pole.
ठीक है, टीलोफेज 2 में अपोजिट पोल पे पहुंच के डिकंडेंस हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएगी, जो हमारे सेल ऑर्गेनिल थे रीअपीयर हो जाएंगे। एट द एंड साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होते ही हमारी डॉटर सेल बन जाएंगी। तो यहाँ से 2 डॉटर सेल बनी, आखिरी में इसने फिर 2 डॉटर सेल बनाई, इसने फिर 2 डॉटर सेल बनाई, टोटल इन ऑल 4 सेल बनी जो कि हैप्लॉइड होंगी। ये भी हैप्लॉइड था, ये डिप्लॉइड था। तो 1 पेरेंटल सेल विच इज़ डिप्लॉइड गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड सेल्स। मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है? मेंटेन्स द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनरेशन आफ्टर दैट जनरेशन, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। तो आपसे जो पूछा जाता है क्वेश्चन जो आएगा आपको वो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज से ही आता है। उसकी स्टेजेस रख लीजिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, क्या क्या हो रहा उस स्टेज में उसको आप रट्टा मार लीजिए और उसी से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलता हूँ ब्रेक के बाद, रट लीजिए इसको, ये पॉइंट्स आपके लिए, और मेरे इसका आप लेक्चर को करके पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी एनसीईआरटी की सब लाइन आपकी, उन्हीं लाइनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।